संघर्षों के साए में इतिहास हमेशा पलता है, संघर्षों के साए में इतिहास हमेशा पलता है, उस और जमाना चलता है जिस और जवानी चलती है। वी आर द यूथ, वी आर डिसाइडर which direction our society will get ahead. We will decide, you will decide, I will decide. Guys, we are just letting them people snatch our opportunities, our dreams, our chances. Why? Because we don't have English. They are able to communicate in English and you are not able. Just because of this, and you have much experience than that person. You know why are you not learning English in the future, guys? Now, if if you have English, definitely you will get ahead of many of people. Really, I know very well. I also did this thing. I tried a lot to ignore English, avoid English, to hide myself in front of guests, in front of teacher, in front of public. I tried a lot to hide myself, but I couldn't do it. Why? Hey, yaar, we will never be able to ignore English, avoid English, because if you wanna do something in your future, definitely you will have to face the English. Really, if you don't learn English today, in future, definitely it will be like a barrier in your career. English will not let you go ahead, really, if you don't have English. So guys, we need to learn English is nothing, yaar. And we have completed our third sessions, but I didn't introduce myself, so let's introduce myself. This is me, Nasir Hussain. I'm your well wisher. Yeah, don't consider me as a trainer and teacher. You can consider me as your brother, as your son, as your good friend. Yeah, if I am elder than you, you can consider me your elder brother. If I am smaller than you, younger than you can consider me as your younger brother. Okay. And if we talk about our journey, we will complete this complete spoken course for free of cost. Yes, guys, now what do we do? The thing we get for free of cost without paying anything, we don't value it. Really, we don't give it value because we didn't pay anything for this. But mark my words, it is not free of cost. You are paying your time here, and time is more than precious everything. Really, time is costly than everything, and you are giving here your time. So guys, we need to we need to be cautious. Okay, so it's time to get back to our topic, what we have studied. So let me remind you, we have completed our past में क्या था हमारा, वही सिंपल कंप्लीटेड कॉन्टिन्यूटी. ओके, सिंपल के अंदर क्या था, हम V2 इस्तेमाल करते हैं सीधा. कंप्लीटेड के अंदर आपका क्या था, हेड प्लस V3 था. और कॉन्टिन्यूटी के अंदर क्या था आपका, वाज वर प्लस V4. इट मीन्स ING वाला, ठीक है ना. और इसके बाद हमने किया था अपना प्रेजेंट, ठीक है ना. प्रेजेंट में भी सेम ही चीज़ें हैं, हमारे टेंसों के नाम नहीं बदलते, ये ध्यान रखना. सिंपल, कंप्लीटेड एंड कॉन्टिन्यूटी, ठीक है ना. सिंपल के अंदर क्या था हमारा, SEIS था, ठीक है. कंप्लीटेड के अंदर हमारा था हैज़ हैव, ठीक है. हैज़ हैव प्लस V3 था. और कॉन्टिन्यूटी के अंदर आपको पता ही है इज एम आर आता है अपना, इज एम आर, ठीक है. इज एम आर प्लस आपका वही आएगा V4, ठीक है. ओके, और अभी जो हमारा बचा है फ्यूचर, ये भी हम कंप्लीट कर ही चुके हैं. आपका सिंपल, कंप्लीटेड एंड कॉन्टिन्यूटी,
सो सिंपल के अंदर क्या था अपना, क्या था, विल ही था, ठीक है, ओनली विल था। और ये कंप्लीट होता नहीं है, कॉन्टिन्यूटी के अंदर क्या आएगा आपका, विल भी आएगा, ठीक है ना, ये आपका आएगा विल बी। काम इसको थोड़ा सा हमें यहाँ लिखना होगा, कुछ करना है इसके साथ, ठीक है। तो गाइज वी हैव कंप्लीटेड these things already, and today what will we teach, हाँ लेट मी टेल यू। देखो एक तो से वाला, ठीक है ना, से एंड नेगेटिव एज वेल, ठीक है, नेगेटिव सेंटेंस हम पढ़ेंगे, और एक जो हमारा से वाला था वो इसके अंदर बचा है FS1 का। इसके बाद जो अपना FS1 है ना, FS1 खत्म हो जाएगा, ठीक है। इट मीन्स यू हैव कंप्लीटेड योर 70% इंग्लिश, ठीक है, बट नॉट नाउ। तो अभी हम देखते हैं, हम पढ़ेंगे पहले नेगेटिव, ठीक है, उसके बाद हम जाएंगे से वाले पर। तो V2 के अगर हम पास्ट सिंपल का नेगेटिव बनाए तो आपको पता है हम यहाँ डिड का इस्तेमाल करते हैं, और डिड हमेशा क्या लेता है, आपको पता है V1 लेता है, ठीक है ना। नेगेटिव में हम इसका नोट लगाई देंगे, ठीक है ना, और लेगा क्या ये V1, हाँ आपको पता ही है कि डिड के साथ हमेशा V1 लेते हैं, ठीक है ना, बेस वर्ब। और इसके बाद पास्ट के अंदर, हाँ बाकी के अंदर क्या करना है आपको, सीधा क्या है कि नोट ऐड कर ही देना है यार, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है आपको, ठीक है ना। बाकी में जैसे हेड के बाद नोट लगाते जाइएगा, और सभी के बाद ना आपको जो नोट ऐड कर देना होगा जस्ट, ठीक है ना, यहाँ नोट आएगा आपका, कोई बात नहीं, ठीक है, नोट, हाँ इसके अंदर देखिएगा कुछ भी नहीं है, हेल्पिंग वर्ब वगैरह इसके अंदर भी नहीं, इसीलिए हमें कुछ और लेना पड़ा। अगर इसके अंदर हमारे पास ऐसा ऑप्शन होता ना, हैज, हैव, इज, एम, आर, लाइक कोई भी ऐसा हेल्पिंग वर्ब होता तो डेफिनेटली हमें डिड की जरूरत नहीं थी, बट यहाँ कुछ है ही नहीं, तो इसलिए हमें ना कुछ लेना पड़ेगा, और उसके लिए हमारे पास व्यवस्था है आपके डूडल्स की। आई नो आपके दिमाग में ये चल रहा था कि डूडल्स कहाँ है, तो डूडल्स आपके यहाँ है भाई, ठीक है, डूडल्स है। और आपको पता है कि डू है जो आपका प्लूरल के साथ आता है, डज है जो वो सिंगुलर के साथ आता है, ठीक है ना। बाकी इसके अंदर हमारे पास हमें सिर्फ नॉट ऐड करना होगा, नॉट ऐड कर देंगे, ठीक है ना। और इसके अंदर भी सिंपल है, नॉट ऐड कर देंगे, यहाँ भी कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। हाँ थोड़ा सा यहाँ है, मैंने ये क्यों मिटाया था यहाँ से आपको बता देता हूँ। देखिए जो नॉट लगता है ना वो यहाँ नहीं लगेगा, वो यहाँ लगेगा, ठीक है ना। विल और बी के बीच में जो नोट लगता है, ठीक है, इसके अंदर ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। और तो सबसे पहले हम इसी को देखते हैं, कुछ हम सेंटेंस की प्रैक्टिस करते हैं, उसके बाद हम से वाला पढ़ेंगे, ठीक है, से वाला कॉन्सेप्ट। तो ठीक है, पहले लीजिएगा पास्ट का, ठीक है ना। ओके, यस मैंने अपना असाइनमेंट कंप्लीट नहीं किया है या नहीं किया, ठीक है ना। मैंने अपना असाइनमेंट कंप्लीट, ठीक है, कंप्लीट नहीं किया, ठीक है, क्या ऐसा रख दूँ, ठीक है, कंप्लीट नहीं किया। तो सीधा पता है हमें पास्ट का ही है, कोई दिक्कत नहीं, पास्ट का सिंपल। अगर हम दिखाना चाह रहे कि कम असाइनमेंट का मतलब है कि अभी की कोई बात है, तो ताज़ा है, तो सीधा हम पास्ट का सिंपल ही लेंगे। अब देखिए प्रॉब्लम क्या है इसके अंदर, बस आपको डिड का इस्तेमाल कैसे करना है। तो देखिएगा ना, सबसे पहले हम क्या देखते हैं, अपना किंग देखते हैं। किंग के बाद क्या, किंग ढूंढने के बाद हम देखते हैं फॉर्मेशन सीट, ये पास्ट है, ठीक है, और उसके अंदर भी नेगेटिव वाला है, यानी ये देखना है कि नेगेटिव वाला है ना, तो सीधा हमें जाना डिड पर, ठीक है ना। और आई डिड नॉट, अभी जो देखिएगा अपनी वो लगाएंगे हम डी टेक्निक के अनुसार क्या काम हो रहा है, कंप्लीट करने का काम यहाँ पर हो रहा है। तो आई डिड नॉट कंप्लीट, अब ये कंप्लीटेड नहीं होगा, ध्यान रखना, ठीक, क्योंकि जो अपना ये है ना डिड, वो हमेशा क्या लेता है, V1 लेता है, ठीक है। तो आई डिड नॉट कंप्लीट मेरा असाइनमेंट, आई डिड नॉट कंप्लीट माई, डी टेक्निक के अनुसार ही आ रहे हैं इस तरीके से, तो यही बचा ना, अपना असाइनमेंट बचा है, आई डिड नॉट कंप्लीट माई असाइनमेंट, ठीक है, खत्म मामला। करना क्या, बस ध्यान ये रखना है आपको कि जब नेगेटिव हो तो हम डिड का इस्तेमाल करते हैं, डिड का इस्तेमाल क्वेश्चन के लिए भी करते हैं, पूछने के लिए, बट मैंने आपको बताया है ना कि हम सारे क्वेश्चन, जितने भी तरह के क्वेश्चन बनते हैं उसको एक क्लास में कवर कर लेंगे, तो इसलिए हम उस पर नहीं जा रहे अभी, ठीक है ना। सो आई डिड नॉट कंप्लीट माई असाइनमेंट, बस ये ध्यान रखना है कि V1 आता है इसके बाद, ठीक है ना। ओके,
एक और लेते हैं डिड का, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। अच्छा, उस व्यक्ति ने क्राइम नहीं किया है, नहीं किया, ठीक है। उस व्यक्ति ने क्राइम नहीं किया, तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे किसका, वो क्या किंग कौन है, किंग सीधा उस व्यक्ति है, व्यक्ति पर्सन, जब कोई एक हो ना तो उसके लिए हम पर्सन इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, दैट पर्सन, ठीक है। क्या काम, उसके बाद क्या करना है हमें, किंग के बाद अपना फॉर्मेशन सीट देखना, पता है कि पास्ट का सिंपल है, उसमें भी क्या है नेगेटिव वाला है, तो नेगेटिव के लिए हमारे पास क्या है, नेगेटिव के लिए सीधा हमारे पास डिड है, दैट पर्सन डिडंट या डिड नॉट, ठीक है। अब देखिएगा, अब काम देखेंगे हम, क्राइम करने वाला हो रहा है, ठीक है ना, दैट पर्सन डिडंट, अब देखो इसको डू नहीं बोलेंगे कि लाइक दैट पर्सन डिडंट डू क्राइम या डिडंट क्राइम, क्राइम के साथ क्या इस्तेमाल करते हैं हम, कमिट, बिकॉज क्राइम क्या है, नाउन है, ठीक है ना। अब ऐसा तो नहीं कि नाउन वर्ब नहीं है ना, इसलिए इसके साथ हम कुछ नहीं कर सकते, लाइक क्राइमिंग वगैरह या क्राइम्स वगैरह, क्राइम्स वो हो सकता है बट वो इस तरीके से नहीं होगा, ठीक है। तो क्राइम एक नाउन है, इसलिए हमें कमिट लेना पड़ा है यहाँ पर, ठीक है ना, वर्ब लेना पड़ा है, दैट पर्सन डिडंट कमिट, अभी हम नहीं कि यहाँ तक हो गया, हम वापस आ रहे हैं, तो क्या बच रहा है, क्राइम, ठीक है, डिडंट कमिट द क्राइम, ठीक है। बस अभी देखिए कमिटेड नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि जो डिड क्या है वो V1 लेता है, ठीक है ना, वो अब की फर्स्ट फॉर्म लेता है, ठीक है। तो चलिएगा आगे, आई होप यू हैव अंडरस्टूड। अभी जो देखिएगा इसके अंदर, हेड के अंदर भी हम सेम फॉर्मूला है हमारे पास, हेड के बाद जस्ट हम नोट ऐड कर देंगे और अपना काम हो जाएगा। एक एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है ना। अच्छा, उसने, हाँ, उसने पेन नहीं चुराया, उसने पेन नहीं चुराया, नहीं चुराया था, ठीक है। अब ये कोई बचपन की बात है, बहुत पुरानी बात है, हम दिखा रहे कि हाँ उसने पेन नहीं चुराया था, कोई गलत फहमी थी, ठीक है। तो क्या करेंगे, सीधा ही देख लेंगे, ही या सी जो भी होगा, ठीक है ना, ही। अब सबसे ये चीज़ ध्यान रखना है कि नहीं यार नेगेटिव है, और ये क्या है, और कोई पुरानी बात हो रही है, हमें ये दिखाना है कि पुराना है मामला, तो सीधा हेड यूज़ करते हैं हम, ठीक है ना। ही हैड, नेगेटिव है तो सीधा हेड के बाद नॉट आएगा ही, ठीक है ना, हेड के बाद नॉट आएगा। तो थोड़ा सा ये ध्यान रखना है कि ऐसा नहीं कि देखो ये जो वर्ब है ना उसके बाद आती है, ठीक है, वो पहले लिखा हुआ था, तो हेड जो वर्ब है उसको यहाँ लिख देते हैं, ठीक है, क्योंकि ना जो इसके साथ वो V3 है, इसमें ऐसा नहीं होगा कि हेड के साथ भी आपका V1 आएगा, नहीं, ये V3 लेगा, जो पहले लेता था ना वही अब लेगा, ठीक है। तो ही हैड नॉट, अब जो चुराने को क्या बोलते हैं आपको पता है, स्टील बोलते हैं, ही हैड नॉट स्टोलन, इसकी थर्ड फॉर्म हो जाएगी स्टोलन, ही हैड नॉट स्टोलन, पेन को नहीं चुराया, उस पेन को नहीं चुराया, ठीक, स्टोलन द पेन, ठीक है, तो हो गया, सीधा हेड का वही लेगा, थर्ड फॉर्म लेगा, ठीक है ना, सेम रहेंगी चीज़ें। हाँ, नेगेटिव में देखो कुछ करना ही नहीं है, सीधा आपको ना बस उसके अपना जो भी वर्ब है इसके अंदर उसके बाद नॉट ऐड कर देना है, ठीक है ना। अच्छा, और देखिएगा हम इसको, देखो पहले नोट आएगा है ना, वर्ब के बाद सीधा यहाँ नोट आएगा, उसके बाद आपका जो वर्ब आता है, सभी में यही होगा, नोट भी इसके अंदर भी ये पहले नोट आएगा, उसके अंदर आपका V3, ठीक है ना, सेम यहाँ भी ऐसा ही होगा, आपका इसके जस्ट बाद नोट आएगा, उसके बाद वर्ब तो वही रहेगा, ठीक है ना, V4 ही रहेगा, ठीक है। सो हाँ, इसके अंदर कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ठीक है। तो हमने देख लिया एक पास्ट कंप्लीटेड का हम एग्जाम्पल ले चुके हैं, एक लेते हैं चलो कॉन्टिन्यूटी का, ठीक है ना। अच्छा, वह झूठ नहीं बोल रहा था, ठीक है ना, वह झूठ नहीं बोल रहा था, हाँ नहीं बोल रहा था, ओके। सीधा हम देखें पता चल रहा है पास्ट की कॉन्टिन्यूटी है, कोई दिक्कत ही नहीं है, पास्ट की कॉन्टिन्यूटी है तो हम, और ये नेगेटिव है तो नॉट का इस्तेमाल होगा, ठीक है ना। ही के साथ क्या आएगा, सिंगुलर है तो आ जाएगा, ही वाज के बाद जस्ट नॉट, ठीक है,
ही वॉज नॉट, अब क्या काम हो रहा है यहाँ पर, डी टेक्निक लगाओ, झूठ बोलने का हो रहा था, नहीं बोलने का हो रहा था। ही वॉज नॉट टेलिंग, अब वो एक झूठ बोल रहा था या बहुत सारी झूठ बोल रहा था, ठीक है। ही वॉज नॉट टेलिंग लाइज, कि वो, हाँ या ठीक है, वो बहुत सारी वो झूठ वो नहीं बोल रहा था, ठीक है, फेक नहीं रहा था। तो सीधा क्या है हमने, जैसे यहाँ से आए हम, यहाँ से वापसी हुए तो हमारे पास एक ही चीज़ बची, ठीक है, ही वॉज नॉट टेलिंग लाइज। ओके, तो ये था अपना पास्ट की जो कॉन्टिन्यूटी थी, ठीक है। और अभी हम एक ले लेते हैं, इसका प्रेजेंट का लेते हैं, प्रेजेंट सिंपल का, ठीक है ना। ओके, वह हमेशा गलतियां नहीं करता है, ठीक है। हाँ, बस आज उससे गलती हो गई है, बाकी वो हमेशा करता नहीं है ऐसा, ठीक है, बहुत समझदार है, लाइक यू, ठीक है। तो हम देखेंगे, हमें पता चल रहा है कि वो हमेशा गलतियां नहीं करता है, मतलब वो ये हैबिट है एक तरह की, वो करता नहीं है, इसका मतलब उसकी आदत है, ठीक है, गलतियां नहीं करना आदत है। ओके, सो सबसे पहले क्या करेंगे हम देखेंगे हमारा किंग वही है, ठीक है, ही। अब सबसे पहले किंग ढूंढने के बाद हम अपनी फॉर्मेशन सीट देखते हैं, सबको पता है कि ये अपना प्रेजेंट का सिंपल है, हैबिट आ रही है इसके अंदर, हैबिट आ रही है, तो हम देखेंगे, और वो भी क्या है, उसमें नेगेटिव है, ये ध्यान रखिएगा। अपने पास नेगेटिव के लिए क्या है, नेगेटिव के लिए है हमारे पास डू डज, ठीक है ना। सो सिंगुलर के साथ क्या आएगा आपका आएगा सीधा वही आएगा, डज आएगा, क्योंकि सिंगुलर के साथ डज आता है, प्लूरल के साथ डू आता है, ठीक है। सो ही डज नॉट, ही डज नॉट, अब यहाँ गाइज ना ऑलवेज आ गया है, बाकी हमारी जो डी टेक्निक के अकॉर्डिंग ना हम क्या करेंगे, सबसे पहले ही डज नॉट मेक, गलतियां करने का काम हो रहा है, ही डज नॉट मेक द मिस्टेक्स, ठीक है। अब एक चीज़ हमने यहाँ पर छोड़ दी है, ऑलवेज वाला जो है उसको कहाँ पुट करेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। सो अब आपको ये एक थोड़ा सा आप सोचेंगे कि मेक कहाँ से आ गया, भाई मेक का मतलब क्या होता है, बनाना होता है। अब जो गलतियाँ हैं सीधा वो नाउन है यार, नाउन को अब हमें वर्ब तो कोई चाहिए ना, इसके लिए हमने मेक इस्तेमाल किया है, ठीक है ना। अब यहाँ पर एक चीज़ बच गई आपकी, आपका जो ऑलवेज है ये भाई यानी हमेशा बच गए। हाँ, कुड यू टेल मी वेयर विल वी पुट दिस। ओके, लेट्स फोकस ऑन द टॉपिक। ही डज नॉट, ऑलवेज को देखो जस्ट इसके बाद पुट करना है आपको, ठीक है ना। ही डज नॉट ऑलवेज, ही डज नॉट ऑलवेज मेक द मिस्टेक्स, आज हो गई, बाकी वो भाई गलतियां करता नहीं है, ठीक है ना, इसको यहाँ रखना है आपको सीधा, ठीक है ना। ही डज नॉट ऑलवेज मेक द मिस्टेक्स। ओके, और देखो यहाँ आप कहेंगे कि एस क्यों नहीं आया, कि हम इसके साथ एस लगाते हैं, तो मेक के साथ क्यों नहीं आया भाई एस, क्योंकि जो एस यहाँ ऑलरेडी लग चुका है, एस या एस देखो ये लगा हुआ आपके डू के साथ ऑलरेडी लगा हुआ है, ठीक है ना, यहाँ ऑलरेडी लगा हुआ है, तो इसलिए हम यहाँ नहीं लगा रहे, ठीक है। सो ओके, ये देख लिया हमने, हैबिट वाला देख लिया। प्रेजेंट कंप्लीटेड का एक लेते हैं, प्रेजेंट कंप्लीटेड का एक लेते हैं उसका। अच्छा, बॉस ने, हाँ बॉस ने उसे ऑफिस में नहीं डांटा है, बॉस ने उसे ऑफिस में नहीं डांटा है, नहीं डांटा है यानी डांटा है, ठीक है। तो सीधा पता चल रहा है कि काम भाई खत्म हो चुका है, नहीं डांटा, बच गया, वो गलती की होगी उसने बट उसको डांटा नहीं है, ठीक है ना। लाइक योर पेरेंट्स, वी कमिट and we make so many mistakes but our parent never scold us except some cases। okay, ठीक है, नहीं डाटा प्रेजेंट का कंप्लीटली है, यानी काम कंप्लीटली का मतलब क्या होता है, काम खत्म हो गया हो, ठीक है। तो काम यहाँ भी खत्म हो चुका है, ठीक है। द बॉस, दा का यहाँ क्यों इस्तेमाल किया है मैंने, क्योंकि बॉस है ना, वो सभी उसको जानते हैं, ठीक है ना, कोई स्पेसिफिक चीज़ के बारे में हम बात कर रहे हो तो दा का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। द बॉस, किंग हमें मिल ही गया भाई, बॉस किंग जरूर होगा यार, किंग ऑफिस के अंदर कौन होगा, किंग बॉस होगा, ठीक है। और अब हमें देखना प्रेजेंट का कंप्लीटेड है ये, ठीक है ना, और नेगेटिव है उसका, नेगेटिव के लिए
हम इस्तेमाल करेंगे अपना नॉट ही करेंगे। ओके, द बॉस, बॉस के साथ क्या लगेगा, हैज़ लगेगा, सिंगुलर है। द बॉस हैज़ नॉट, डांटने को आपको बताया था कि स्कोल्ड बोलते हैं, स्कोल्डेड। हाँ, इसके अंदर सीधा देखिएगा V3 आएगा, ठीक है ना। द बॉस हैज़ नॉट स्कोल्डेड, ठीक है ना, उसने नहीं डांटने वाला हो गया, ठीक है ना। अभी हम यहाँ से आएंगे ना, स्कोल्डेड हिम, बॉस स्कोल्डेड हिम, कहाँ, ऑफिस के अंदर, इन द ऑफिस, ठीक है, ठीक है, सिंपल रहेगा बिल्कुल। द बॉस हैज़ नॉट स्कोल्डेड हिम इन द ऑफिस, ऑफिस के अंदर उसको नहीं डांटा है। ओके, डू यू हैव एनी डाउट? इफ यू हैव, सो प्लीज put your comment into comment box. Okay, your doubt will be solved definitely यार, ठीक है ना। कुछ भी नहीं है, बस आपको इसी तरीके से इस MR के बाद भी वही नोट ऐड करना होगा आपको। एक ले लेते हैं जल्दी से। अच्छा, हम पत्थर नहीं फेंक रहे थे, सॉरी, हम पत्थर नहीं फेंक रहे हैं, हम पत्थर नहीं फेंक रहे हैं, ठीक है। सीधा पता चल रहा भाई प्रेजेंट की कॉन्टिन्यूटी है और नेगेटिव है, सो सीधा जाएंगे प्रेजेंट की कॉन्टिन्यूटी के अंदर। और नेगेटिव के लिए अपना क्या है, देखो नेगेटिव थोड़ा सा, भाई नेगेटिव के लिए हमारे पास क्या व्यवस्था है, ठीक है ना। सीधा हमें वही लगाना है यार, नोट लगाना है, बाकी चीज़ें सेम ही रहेंगी। अच्छा, वी के साथ क्या लगाते हैं, सीधा पता है आपको, आर लगाते हैं प्लूरल के साथ। वी आर के बाद नोट आएगा अकॉर्डिंग टू योर फॉर्मेशन सीट। वी आर नॉट, फेंकने को क्या बोलते हैं, थ्रो बोलते हैं। वी आर नॉट थ्रोविंग, अच्छा क्या नहीं फेंक रहे हैं, अब यहाँ से आगे आएंगे पत्थर, द स्टोन, ठीक है, हम पत्थर नहीं फेंक रहे हैं। तो इसके अंदर कुछ ऐसा है नहीं यार, ठीक है ना। बस आपको नेगेटिव का क्या है, नेगेटिव में क्या नॉट ऐड कर दो जस्ट उसके बाद। विल का भी सेम फॉर्मूला है। ओके, लाइक आई विल नॉट गो टू जयपुर, आई विल नॉट डू दिस वर्क, आई विल नॉट डू दैट वर्क, हाँ लाइक दिस। बस उसके विल के बाद आपको नोट ऐड कर देना है। बट इसका हमें एक दो एग्जाम्पल लेने होंगे, जैसे कि अच्छा, मैं हाँ ज़्यादा नहीं खा रहा होगा, मैं ज़्यादा नहीं खा रहा होगा, सीधा पता चल रहा है कि वो फ्यूचर की क्या है, कॉन्टिन्यूटी है, ठीक है। और उसमें भी क्या नेगेटिव है, नेगेटिव में करना क्या है आपको, सीधा आपको पता है नेगेटिव में क्या है हमारे पास। सो मे आई विल बी, ओ ये हाँ, ओके ओके ओके, आई विल बी नॉट, या आई विल बी नॉट, खा रहा हूँगा ना, नॉट ईटिंग टू मच फूड, ईटिंग फूड, नॉट ईटिंग फूड टू मच, ठीक है। अब टेल मी वन थिंग, इज इट राइट और नॉट? Oh, it means you got it. Yeah, you are absolutely right. It is not right. Okay, it is not perfect. Why? देखिएगा, मैंने बहुत बार देखा है कि लोग ये गलती करते हैं यार। वो क्या बोलते हैं कि या आई विल बी नॉट डूइंग दिस वर्क, आई विल बी नॉट बीटिंग यू, आई विल बी नॉट स्कोल्डिंग यू, लाइक दिस। वो जो नॉट का इस्तेमाल करते हैं वो बी के बाद में करते हैं, बट ये गलत है, ऐसा नहीं होता। देखिए जो नॉट आएगा ना, मैंने आपको वहाँ ऑलरेडी बताया हुआ है कि जो बी और विल के बीच में आएगा, ठीक है ना। आई विल बी, सॉरी, आई विल नॉट बी ईटिंग फूड टू मच। ओके, अभी यहाँ से आगे चलते हैं फिर। वी हैव कंप्लीटेड आवर नेगेटिव सेंटेंसेस, इट्स टाइम टू डिस्कस से कॉन्सेप्ट। हाँ, छोटा सा ही है, बस इसके अंदर होता क्या है ना, से वाला जो वो होता है ना, लाइक मैं 6 महीने से पढ़ाई कर रहा हूँ या कर रहा था, मैं 6 महीने से कंप्यूटर चला रहा हूँ, मोबाइल चला रहा हूँ, मोबाइल यूज़ कर रहा हूँ। ऐसे जो इस तरह के क्वेश्चन होते हैं ना, जो कि पीछे से चल कर आ रहे होते हैं या ख़त्म हो गए, हो चुका हो, जैसे कि पास्ट का एक एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है ना। ओके, डोनाल्ड ट्रंप, हाँ डोनाल्ड ट्रंप
पिछले हाँ पिछले 1 साल से हाँ झूठ झूठ नहीं फेंक रहे थे या फेंक नहीं रहे थे। डोनाल्ड ट्रंप इज माय फेवरेट यार। डोनाल्ड ट्रंप एक एक साल से झूठ नहीं बोल रहे थे। अब देखो इस क्या हमारे पास फॉर्मेशन सीट में अभी तक कुछ भी नहीं इस तरह के सेंटेंस को करने के लिए। तो क्या होगा, हम कुछ ऐड करेंगे नया, ठीक है ना, इस तरह के सेंटेंस को करने के लिए। तो क्या होगा, अभी आपको पता चल गया कि वो पास्ट की कॉन्टिन्यूटी थी। जब ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए ना कॉन्टिन्यूटी के अंदर से वाला आ जाए, ठीक है ना, देखो अब जब से वाला आपका कोई भी क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है ना, ये जब से वाला आ जाएगा ना, ठीक है, तो आपको क्या करना है, उसके अंदर आपको करना होगा, अगर यहाँ क्या है पास्ट के अंदर क्या यह इस्तेमाल होगा, यहाँ पर हैड बीन, ठीक है, हैड बीन के अंदर अब बाकी आपका वो क्या है वर्ब है तो वो तो सेम ही रहेगा, ठीक है। और अगर ये प्रेजेंट का केस हो, इसके अंदर आपको क्या करना होगा, इसके अंदर आपको हैज़ बीन या फिर आपका हैव बीन, सीधा क्या आएगा उसके वर्ब वही रहेगी। बस ये 2 चीज़ें हैं ना, आपको ये करनी होंगी, ठीक है ना, यही पढ़ना है आपको, ठीक है ना। फ्यूचर के अंदर वो यूज नहीं होता है, उसको वी डोंट नीड टू रीड। अब एक एग्जांपल वही लेते हैं अपना डोनाल्ड ट्रंप, ठीक है, आई डोंट नो यू कैन सी द ब्लैक बोर्ड और नॉट। ओके, सो एग्जांपल हम पहले ले चुके थे, मैं आपको फिर से बोल देता हूँ। डोनाल्ड ट्रंप 1 साल से झूठ नहीं बोल रहे थे, ठीक है। देखिए यहाँ हमारे पास जगह है तो यहाँ लेंगे, ठीक है ना। अच्छा, डोनाल्ड ट्रंप 1 साल से झूठ नहीं बोल रहे थे, ऐसा आ जाए, ठीक है ना। तो यहाँ देखो क्या आ रहा है, से वाला, तो यही हमारे कॉन्सेप्ट का नाम ही है कि से वाले जब इस तरह के कोई क्वेश्चन आ जाए, कोई काम हो रहा हो कोई भी हो, तो उसके लिए हम से का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। सो यहाँ क्या हैड बीन है, तो आपको देखना है जब भी कोई ऐसा हो, ये पता चल रहा है आपको पाओ पास्ट की कॉन्टिन्यूटी है और उसमें भी से वाला है, ठीक है ना। तो देखना है आपको पास्ट की आपकी कॉन्टिन्यूटी यहाँ है और से वाले के अंदर आपको हैड बीन यूज करना, बाकी चीजें सेम रहेंगी, ठीक है। डोनाल्ड ट्रंप, ठीक है, अभी जो हैड नॉट बीन, कहाँ से आया हैड नॉट बीन, देखिएगा ना, हैड बीन ये रहा आपका। अगर इसमें भी नेगेटिव है, अगर नेगेटिव है तो आपको क्या करना है, हेड इसके जो हेड और बीन के बीच में नोट लगा देना है, ठीक है ना। हेड बीन नोट नहीं करना है आपको, ठीक है। अगर नेगेटिव हो तो आपको यहाँ है ना, जो यहाँ आपका नोट लगेगा, ठीक है, अगर ये नेगेटिव हो तो ध्यान रखना। डोनाल्ड ट्रंप हैड नॉट बीन झूठ टेलिंग, यानी हमारे पास V4 लेंगे ना, हमें वो चेंज होगा ही नहीं, V4 है, टेलिंग अलाई। हाँ एक चीज और आ गया यार गाइज, टेलिंग अ लाई फॉर, ठीक है, फॉर 1 ईयर। अभी मैंने आपको सिंस 4 वाला जो बताया नहीं है, हाँ इसके अंदर देखो सिंस 4 भी आएगा भाई। सिंस 4 का क्या सिस्टम है थोड़ा सा हम बता देते हैं आपको। अगर ऐसा कोई काम हो कि 6 महीने से या 8 महीने से, तो कब हम सिंस इस्तेमाल करेंगे, कब 4 इस्तेमाल करेंगे। देखिए जहां आपका ये इंडिकेशन आ रहा हो ना कि लाइक, हाँ लाइक शनिवार से हम यह काम नहीं कर रहे हैं या कर रहे हैं, ऐसा जो आपको फील हो ना, इस तरीके एक पॉइंट वाला फील हो एक चीज़ के लिए, जैसे हम ईद से यह काम नहीं कर रहे हैं, हम ईद से जश्न मना रहे हैं, तो जहाँ ये वाली फील आ जाए ना, ठीक है, तो वहाँ आपको यूज़ करना होगा सिंस। और जहाँ आपका एग्जैक्ट सन आ जाए, जैसे एग्जैक्ट चीज़ आ जाए, देखिएगा लाइक 2009 से 2010 से, या जो भी कोई डेट वगैरह आ जाए, कोई तारीख वगैरह आ जाए, तो सीधा आपको क्या जो सिंस का यूज़ करना है, ठीक है ना, ऐसा कोई निश्चित चीज़ हो। और 4 का यूज़ जब इस तरीके का फील आए कि यार 6 महीने से, अब हमें क्या पता कौन से 6 महीने से, ये कि 2025 के 6 महीने हैं या फिर 2010 के 6 महीने हैं, क्या पता कौन से 6 महीने से, या 2 दिन से, तो क्या पता हमें कि कौन से 2 दिन है, यानी 2 दिन से,
8 दिन से या 6 महीने से या 10 साल से, तो यहाँ देखो फील जो इस तरीके का आ रहा है, ठीक है ना। ये ध्यान रखना, कोई भी आप कभी भी से वाला कोई क्वेश्चन देखे तो बस ये देखना, अगर आपको लगे कि ऐसा ऐसा जो फील आपको आ रहा है तो आप बिना सोचे वहां पर फॉर का इस्तेमाल कर सकते हैं। बट अगर कोई निश्चित चीज़ हो, फिक्स चीज़ हो, आप उसे एक चीज़ से कह सकते हैं इस तरीके से, तो आप सिंस का यूज़ कीजिएगा, ठीक है ना। सिंपल है और कहीं मत जाइएगा, ठीक है ना। तो यहाँ मैंने क्या इस्तेमाल किया था, फॉर 1 ईयर। अब देखिएगा ना फॉर 1 ईयर का, अब हमें ये नहीं पता कि एग्जैक्टली कौन सा एक 1 ईयर है, 2025 का है, 2024 का है या 2001 का है, कुछ नहीं कह सकते ना, फिक्स कुछ नहीं है। तो इसलिए मैंने क्या इस्तेमाल किया, आप यहाँ फॉर इस्तेमाल किया है, ठीक है ना। हम और चलो और लेते हैं हम। अच्छा, हम इंग्लिश की इंग्लिश पिछले 6 महीने से इसे पढ़ रहे थे, ठीक है। तो सीधा वही चीज़ है इसके अंदर, क्या करना है आपको, सबसे पहले देखना पास्ट की कॉन्टिन्यूटी है, कॉन्टिन्यूटी के अंदर आपका क्या है, से वाला, ये वाला, ठीक है, ये वाला है। तो सीधा देखेंगे पास्ट की कॉन्टिन्यूटी कहाँ है आपकी, ये रही आपकी। और अब आपको सेवा में, से वाले में हमारे पास क्या व्यवस्था है, क्या व्यवस्था है हमारे पास है हैड बीन, ओके। तो हैड बीन हम इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर, ठीक है। अगर पॉजिटिव है या नेगेटिव है तो आपने नोट लगा लेंगे, अदरवाइज कोई बात नहीं, ठीक है। ठीक है, वीकिंग हो गया आपका, क्या काम हो रहा है, उससे पहले हम अपनी फॉर्मेशन सीट देखेंगे कि ये वाला सिस्टम है, हेड बीन आएगा यहाँ पर। और यहाँ एक चीज़ और है, आपको ये देखने की जरूरत ही नहीं कि सिंगुलर प्लूरल वगैरह क्या लगे, सब चीज़ के साथ हेड बीन आएगा गाइस, सिंगुलर हो या प्लूरल हो, ठीक है ना, हर चीज़ के साथ हेड बीन ठोक देना, ओके। वी हैड बीन पढ़ रहे थे, काम क्या हो रहा, पढ़ने का हो रहा, सीधा जाइएगा यहाँ पर, वी हैड बीन स्टडिंग, ठीक है, वी हैड बीन स्टडिंग। अब यहाँ से आगे आएंगे ना, पिछले 6 महीने में ही हैड बीन स्टडिंग इंग्लिश। देखिए इसको ना थोड़ा सा हमने ये गड़बड़ कर दी, इसको लास्ट में रखते हैं हम, पिछले 6 महीने को जो सिंस या फॉर लास्ट में आता है, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रखना। तो वी हैड बीन स्टडिंग द इंग्लिश। अभी हमारा बच्चा क्या, पिछले 6 महीने। अब देखिए पिछले 6 महीने, ये आपको जरूरत ये नहीं यहाँ लिखने की कि फॉर लास्ट 6 मंथ, आप डायरेक्ट लिख दो फॉर 6 मंथ्स, उसका मतलब ये कि वो पीछे का है, ठीक है ना, इसका मतलब ये द इंग्लिश फॉर 6 मंथ्स, ठीक है, फॉर 6 मंथ्स, ठीक है ना, इस तरीके से। तो ये था आपका फोर वाला लॉजिक। एक हाँ सिंस का और लेते हैं कोई, अच्छा, हमारी टीम 2007 से अच्छे काम कर रही है, ठीक है। हाँ पास्ट पढ़ रहे हैं ना, तो पास्ट में कर रही थी, ठीक है। सो सीधा देखेंगे किंग हो गया हमारा, हमारी टीम है। सबसे पहले क्या देखते हैं, पास्ट की कॉन्टिन्यूटी है, उसके बाद जाएंगे हमारा से वाला है, सीधा पास्ट है, और जो से वाला हम यहाँ जाएंगे, ठीक है ना, ये वाला, ठीक है। तो हमें पता चल गया कि से वाला है। सो हमारी टीम, आवर टीम, ठीक है, सीधा हैड बीन, आवर टीम हैड बीन। अब देखिएगा, हम देखेंगे काम क्या हो रहा है यहाँ पर, काम हो रहा है आपका अच्छे काम, आवर टीम हैड बीन डूइंग गुड वर्क। अब यार देखिएगा यहाँ क्या आ गया, आपका आ गया फिक्स 2007 से कर रहे हैं हम, ठीक है ना, फिक्स हमें चीज पता चल गया। तो क्या करेंगे हम, सीधा 2007 से सिंस, ठीक है, 2007, ओके। जब भी कोई फिक्स चीज हो ना, संडे मंडे ट्यूसडे वगैरह ऐसा कुछ भी हो तो फिक्स है वो, तो सीधा हम कह सकते हैं ना कि संडे या ट्यूसडे, तो सीधा हमें क्या सिंस का इस्तेमाल करना है, ठीक है ना।
ओके चलो एक अब इसका लेते हैं, ये लेते हैं हम अपना प्रेजेंट कम्प्लीटेड का, ठीक है। अच्छा वो 4 दिन से, वो 4 दिन से 4 दिन से वो 4 दिन से अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, अपनी प्रॉब्लम सॉल्व। देखो गाइज, आई थिंक one thing you must have noticed that we have increased the level of sentence, ठीक है। अब थोड़े से बड़े सेंटेंस आने लग गए हमने, हमें थोड़े से जिनका लेवल है ना जो धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, ठीक है ना, और आपको पता भी नहीं चलेगा। वो 4 दिन से अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे प्रेजेंट का क्या है, कॉन्टिन्यूटी है, काम हो रहा है, और उसमें भी क्या है अपना से वाला है। सो क्या करेंगे, सीधा सबसे पहले जाएंगे हम अपना किंग पर ही, और किंग के बाद हम देखते हैं अपनी फॉर्मेशन सीट क्या है, उसके अंदर आपका प्रेजेंट की कॉन्टिन्यूटी है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूटी यहाँ पर है आपकी। सो यह से वाला कंसेप्ट है इसके अंदर, ठीक है। तो अरे नहीं ये तो, हाँ अरे प्रेजेंट का ये नहीं, ये है प्रेजेंट की कॉन्टिन्यूटी, ये है सॉरी। तो इसके अंदर, हाँ इसके अंदर, ओके हे गाइज आई एम सो सॉरी, ये कॉन्टिन्यूटी के अंदर रखना था और हमने रख रखा है इसको। हे यार आई एम मेकिंग मिस्टेक्स एंड यू आर नॉट टेलिंग मी, यार इट्स नॉट फेयर, इट्स नॉट फेयर, यू शुड हैव टोल्ड मी दैट आई हैव मेड अ मिस्टेक, ह्यूज मिस्टेक, व्हाई डिड यू नॉट टेल मी यार, ठीक है ना। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम कॉन्टिन्यूटी के अंदर इनको रखते हैं, ठीक है। क्या था हमारा, हैज़ बीन, हैव बीन, हैव बीन, और वही तो वर्ब तो अपना वही रहेगा यार, बिफोर ही रहेगा, उसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ठीक है ना। तो ये है, ये था अपने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूटी है, प्रेजेंट की कॉन्टिन्यूटी हम देखेंगे कि क्या था, ये अपना से वाला है, ये ध्यान रखना, ठीक है, से वाला था। ओके तो हम सबसे पहले अपनी फॉर्मेशन हमें पता है प्रेजेंट का है, कॉन्टिन्यूटी है, और उसके अंदर भी क्या है, से वाला है। तो यहाँ हम आए, सो ही हैज़, आपको पता है हैज़ क्यों आया, क्योंकि सिंगुलर है। ही हैज़ बीन, अपनी प्रॉब्लम क्या काम हो रहा है यहाँ पर, सोल्व करने का हो रहा है। ही हैज़ बीन सॉल्विंग हिज प्रॉब्लम। अब यार हर बार ये टेक्निक वो आप जान चुके हैं तो कोई बात नहीं। ही हैज़ बीन सॉल्विंग हिज प्रॉब्लम। अब क्या बच गया लास्ट में, 4 दिन वाला यही बचा ना। अभी 4 दिन का क्या अब नहीं पता कि वो अभी इसी महीने में कर रहा है या कब कर रहा है, क्या पता हमको कौन से 4 दिन है, कुछ नहीं पता ना 4 दिन कौन से हैं, ठीक है। तो इसलिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर, फॉर इस्तेमाल करेंगे, ठीक है ना। फॉर, हाँ फॉर 4 days, ओके। या तो गाइज ये सिंस फॉर का अपना सिस्टम है। एक और एग्जांपल लेते हैं, चलो। अच्छा एक एग्जांपल लेते हैं हम इसको, कि हमारा देश पिछले 10 साल से प्रोग्रेस कर रहा है। इसका देखिए, देर इज नो एनी कनेक्शन विद करंट सिनेरियो, विद पॉलिटिकल, ओके, देर इज नो एनी कनेक्शन। So please don't relate my words with current situation and scenario with political, okay. We are taking examples, random examples for learning, okay. So हमारा देश पिछले 10 साल से, देखो पिछले को नहीं रखना तो भी कोई दिक्कत नहीं, 10 साल से प्रो या तरक्की कर रहा है, ठीक है। तो सीधा पता है कॉन्टिन्यूटी है और उसके अंदर भी क्या है आपका से वाला है, सीधा जाइएगा। प्रेजेंट की कॉन्टिन्यूटी के अंदर क्या व्यवस्था है हमारे पास, सीधा हैज़ हैव का हमने चलो ले लेंगे। हैज़ हैव का क्या है, सिंगुलर के साथ हम हैज़ ही लेते हैं, तो देश भी हमारा सिंगुलर ही है, ठीक है ना। अवर कंट्री, अवर, ठीक है, अवर कंट्री क्या देंगे, सीधा लेंगे हैज़ बीन प्रोग्रेसिंग पिछले 10 साल से, या 10 साल से, ठीक है ना, फॉर 10 years, ओके, ठीक है। Guys, I think we have completed our say concept.
अच्छा एक और लेते हैं, लास्ट, इट विल बी अ लास्ट एग्जाम्पल ऑफ से कंसेप्ट। ठीक है, एक और लेते हैं। अच्छा, वह चोर, अच्छा चोर को छोड़िएगा। हाँ, मेरा भाई, हाँ मेरा भाई, मेरा भाई 4 साल से, 4 साल से पढ़ाई कर रहा है, पढ़ाई कर रहा है। हाँ ठीक है ना, 4 साल से। ओके, तो सीधा मेरा भाई, माई ब्रदर। ओके, सीधा जाएंगे, कॉन्टिन्यूटी है और से वाला है, सीधा जाइएगा, प्रेजेंट की कॉन्टिन्यूटी के अंदर से वाला है। सो माई ब्रदर इज आल्सो सिंगुलर, माई ब्रदर हैज़ क्या काम हो रहा है, पढ़ाई का हो रहा है ना, हैज़ बीन पढ़ाई का हो रहा है, तो सीधा पढ़ाई का, स्टडिंग, स्टडी। अब 4 साल से, ये भी कोई फिक्स नहीं है कौन सी 4 साल है, 4 years। ओके, या सो गाइज we have completed our negative negative sentence and say concept as well, and here our FS1 has finished. Congratulations to all of you that we have completed our FS1 and you have learned 70% of English. Okay, आपकी जो 70% इंग्लिश है वो आ चुकी है, ठीक है ना। नाउ यू कैन स्पीक easily। अभी जो हमारा FS2 है उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि 20% है, FS2 के अंदर होगी आपकी 20% एंड जो आपका FS3 है। अच्छा एक मिनट रुकिएगा, मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ अपना जो अगला शेड्यूल क्या रहेगा। व्हाट विल बी आवर शेड्यूल। सो हमारा जो FS1 हो गया, FS1 हो गया अपना, FS2 है और FS3 है, हमारे पास 3 सेट है इसी तरह के, ठीक है ना। सो FS1 के अंदर क्या है, हमने कंप्लीट कर ही चुके हैं, अपना डन हो चुका है पूरी तरीके से। और FS2 का इसके अंदर आपकी 70% आ गई, 20% यहाँ आ जाएगी और रिमेनिंग 10% हम यहाँ कवर कर लेंगे। बिफोर स्टार्टिंग आवर FS2 आई विल गिव यू सो मैनी एग्जाम्पल्स, मोर देन 50 एग्जाम्पल्स। आपको जो 50 प्लस जो एग्जाम्पल्स होंगे वो मैं दूंगा फॉर प्रैक्टिसिंग। ओके, ये जो आपकी क्या होगी, ये आपकी फाइनल प्रैक्टिस होगी, ठीक है ना, फाइनल प्रैक्टिस के। इसके बाद हम है ना जो फाइनल प्रैक्टिस ये आपकी होगी, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे अपना FS2। जब तक FS1 हम पूरी तरीके से इसमें मास्टर ना बन जाए ना, हम आगे नहीं बढ़ेंगे दोस्त। ओके, आपको मैं क्वेश्चन दूंगा, उसके बाद आप अपने से अटेम्प्ट करना सारे क्वेश्चन। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आए, कुछ भी आपको समझना है, तो आप अपना कमेंट है वो कमेंट बॉक्स में पुट कीजिएगा। डेफिनेटली आई विल सॉल्व योर प्रॉब्लम। इसके अंदर मुझे नहीं लगता कि आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आएंगी। आप चाहे बिगनर हो, चाहे आपका लेवल ठीक ठाक हो, इंटरमीडिएट हो, एडवांस कुछ भी हो, तो अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो ना, तो आप अपने कमेंट बॉक्स में मैसेज कीजिएगा, ठीक है, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी डेफिनेटली। तो गाइज it was our today's session. I hope you enjoyed a lot this session. And guys, one thing I tell you, here I wanna make you a boss in your life. It doesn't matter which field you working. Really, it doesn't matter your field. But na, yeah, you should be the boss of your field. Really, yeah. English is not just a language; it is a skill. Really, it is a skill, and it brings a lot of things with it. Not only just language, like professionality, okay, knowledge as well, and it makes you a separate person from vulgar and normal person. Really, it makes you a separate person. So don't take lightly. Definitely, if you have a good English, you will get ahead of so many people. Mark my words, it will help you a lot in your career. Without English, you will have to face so many problems in your career. But if you don't want to do anything, then you don't need to read anything.
but and don't need to learn English. But if you want to achieve something in your career, if you want to prove yourself, if you want to do some great, then you must learn to English. Really, yeah, you must, because you need to become a professional. So guys, it was our tantalizing session. So I think I should wrap up my session because we have taken a lot of time. But here now we are not wasting our time. Don't worry. Just invest yourself, utilize your time, and don't give your time to anybody. Yeah. Because time is very precious, more than everything. Don't give your time. So this is my site, and I hope today you have learned some new. And tell me in comment box that did you know already uh, these techniques or not. Okay, it is new for you or not. Okay, your comment will help me a lot to improve myself. Okay, so guys, thank you so much. You have a tantalizing day ahead. Bye bye. We will meet tomorrow.